हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल चैम्पियंस स्मार्ट क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स की बात करने जा रहे हैं विच आर बेस्ड ऑन सम आइडेंटिटीज़। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उन आइडेंटिटीज़ के बारे में जिनके बेसिस पर हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो लेट अस सी द आइडेंटिटी। सो द फर्स्ट आइडेंटिटी इज a प्लस बी होल स्क्वायर। ओके, इसको हम रीड करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये रिजल्ट आता कहाँ से है? ये इस तरीके से आता है, a प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब होगा a प्लस बी विल बी मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ, मीन्स a प्लस बी मल्टीप्लाई होगा a प्लस बी से। मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में आपको बाइनोमियल से बाइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन सिखाया हुआ है, आप वॉच आउट कर सकते हैं उस वीडियो को। तो हम लोग बाइनोमियल, बिकॉज हेयर टू टर्म्स आर देयर, दैट्स वाई इट इज़ अ बाइनोमियल टर्म एक्सप्रेशन, और ये भी एक बाइनोमियल है। सो मल्टीप्लाई करते हैं, ये a इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करेगा या इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करेगा। सो a प्लस बी, ओके, देन द सेम साइन विल बी हेयर इटसेल्फ, एंड यहाँ पे होगा b और ये होगा a प्लस बी। नाउ वी विल बी जस्ट मल्टीप्लाइंग दिस a into this bracket, so it will give you a square plus a and b will multiply to give ab, then ba and then b square. If you just observe this, then these are the like terms, ab and ba both are the like terms, so they will be added and they will give us a square plus 2ab plus b square. So from here we have got this conclusion. So this formula conclude to a plus b whole square is equals to a square plus 2ab plus b square. It can be also written as a square plus b square plus 2ab, बट फॉर राइटिंग इट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब हम एक वेरिएबल के डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द डिग्रीज के फॉर्म में जब लिखें, जैसे a की पावर 2 है यहाँ पर, देन हेयर द पावर ऑफ a इज 1, देन हेयर नो a इज देयर, इट मीन्स द पावर ऑफ a इज 0. सो डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द एल्जेब्रिक टर्म के फॉर्म में हम लिखते हैं तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, दैट्स वाई हम लोग इसको ऐसे लिखे हैं, बट फॉर योर कंफर्ट यू कैन राइट इट लाइक वाइज ऑल्सो. Now just see the next identity. The second one is a minus b whole square and it resulted a square minus 2ab plus b square. Similarly, the procedure we have used here, in the same way we will be just doing this one also, a minus b into a minus b. So this a will get multiplied to this whole expression a minus b, and then this minus b will multiply this a minus b again. So from this you have got a square minus ab minus ba and minus plus b square. So these are the like terms. So we have got here a square minus 2ab plus b square. Okay, so it is the second identity. Now let us move to the third identity. So the third one is a square minus b square is equals to a plus b into a minus b. So from where we have got this conclusion, because here two algebraic expressions are there and here simplification is there. तो यहाँ पर हम लोग राइट हैंड साइड से सॉल्व कर रहे हैं. सो यहाँ पर हम a इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, a minus b then plus b a minus b. So after more simplification we have got a square minus ab plus ba minus b square. You can see both are the like terms with the opposite sign, so they will get cancelled out to give us 0. So a square minus b square. So it is the conclusion. So this is the third identity, that a square minus b square gives a plus b into a minus b. By using three identities we will be solving some more important questions which are very important for your examination and competitive purposes also. These steps are very simple, but you need to just catch them, that which identity is applicable over there. You will be getting many sort of questions regarding these. तो मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हुए हैं, कहीं पर आपको इस तरीके से स्प्लिटेड फॉर्म में दिया जा सकता है और यहाँ पर आपको फाइंड करना हो सकता है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग. तो यहाँ पर देखिए, जो फर्स्ट टर्म है यहाँ इस एक्सप्रेशन में और जो सेकेंड एक्सप्रेशन में फर्स्ट टर्म है, बोथ आर सेम एंड द सेकेंड टर्म्स आर ऑल्सो सेम एंड दियर साइंस आर ऑल्सो सेम. सो इट मीन्स वी कैन जस्ट राइट इट लाइक 4x plus 5y whole square. Okay, now just you have came to know about the identity when a plus b whole square will be there, then it will be a square plus b
plus 2ab plus b square. So you have to just write it like, since a plus b whole square is equals to a square plus 2ab plus b square. Now by comparing these expression, you came to know that the value of a is equals to 4x and the value of b is equals to 5y. So let us replace these values. So it means 4x plus 5y is equals to 4x whole square plus 2 into 4x into 5y, then plus 5y whole square. So you have got 4 4s are 16x square, then coefficients will get multiplied to each other. So 4 2s are 8, 5s are 40 xy plus 25 y square. So it is the product. Simply we have got it in 2 steps. Then just see the second example here. X square y minus yz square whole square is there. First of all, just see the minus sign is here, and the second thing is that whole square is there. It means the second identity is applicable here. So we have got a is equals to x square y and b is equals to y z square. So by implementing this identity, we would be able to find the value of this one. X square y minus y z whole square is equals to x square y whole square minus 2 into x square y into y z square plus y z square whole square. Okay, then after this, let's simplify it more. X square to the square, it means here x to the power 4 powers will get multiplied and y square will be there, and then just see 2 x square is here and here no other x is there, so it will be x square itself, y into y square, and then z square, then plus y square z to the power 4. So this is the result of this simplification. Then just see the third example here. Here both the terms are same in both algebraic expression regarding their signs. If you see the sign here, plus is there, here minus is there. So it means you came to know that the signs are different. So the third identity is applicable here. So which was a square minus b square is equals to a plus b and a minus b. So it means it will give you a means what? 2x minus b means 5 whole square. Then after more simplification, we have got 4x square minus 25, and this is your answer. Then the next example you can see here, यहाँ पर भी आपकी a square minus b square की identity लगेगी. So for this, x square minus 1 by x whole square, it will result x square minus 1 by x square. Okay, so it will be the simplification of this. One most other important expression is this one. ये क्वेश्चन भी है इससे रिलेटेड. अभी हम आगे थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसका सॉल्यूशन तो बहुत इजी है, बट जब आप एक बार में क्वेश्चन को देखते हैं तो आपको थोड़ा सा डर सा लगता है कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है, इसका आंसर कैसे आएगा. बट द सॉल्यूशन ऑफ दैट वन इज सो इजी, इसलिए मैं पहले आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको बता रही हूँ. अगर आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, यू कैन सी ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी एप्लीकेबल है यहाँ पर. सो लेट अस just apply this identity here. So it means x plus 1 by x whole square is equals to x square plus 2 into x into 1 by x. The value of b is 1 by x by comparing this, and 1 by x whole square. So you can just see if anything is there in numerator and its any multiple is there in denominator, so that can get simplified. So x will get cancelled out by this x. So what we have got here, x square plus 2 plus 1 by x square. अब इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 1 by x square plus 2. Okay, so this is the simplification of this one.
अभी तक के एग्जाम्पल्स में तो सब कुछ काफ़ी अच्छा दिख रहा था और आपको आसानी से समझ में भी आ गया होगा, बट थोड़ी सी प्रॉब्लम आपके लिए तब बढ़ जाती है जब आपको कुछ ऐसे इक्वेशंस मिलने लगते हैं कि इवेल्युएट बाय यूजिंग द फॉर्मूला। तो अब आप सोचते हो कि यहाँ पर फॉर्मूला तो a प्लस बी के फॉर्म में पढ़ा है हमने, जहाँ पर बाइनोमियल्स हैं, बट यहाँ तो सिंगल टर्म है और उसका स्क्वायर करके दिए और बोल रहे हैं फॉर्मूला, तो इससे हमें बाइनोमियल के फॉर्म में एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, इसे एक्सपांड करना पड़ेगा। सो लेट अस सी, इट इज़ वेरी इजी। सो इसको हमें एक्सपांड करना पड़ेगा, जैसे नियरेस्ट हम होल नंबर के अराउंड इसको एक्सपांड करते हैं, जस्ट लाइक वी कैन राइट 54 एज 50 प्लस 4 एंड होल स्क्वायर विल बी, सो बाय यूजिंग द आइडेंटिटी 50 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 50 इंटू 4 प्लस 4 स्क्वायर, so we have got what 2500, then 400, then 4 4 is 16। इसको करने की वजह से हमारा कैलकुलेशन काफ़ी सिंपल हो जाता है, बिकॉज अगर हम इसे लिखते हैं तो 54 इंटू 54 करते हैं और वो काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाता है। इसकी वजह से देखिए हमें 55 का तो स्क्वायर ऑलरेडी पता ही है, सो वेरी इजीली वी रोट द स्क्वायर ऑफ 50 है, एंड 4 का स्क्वायर भी हमें पता है, तो इसको एक्सपांड करके स्क्वायर करने का सिर्फ पर्पस हमारा होता है कैलकुलेशन को सिंपल बनाना और टाइम कम कंज्यूम करने वाला बनाना। सो इसको हम ऐड कर देंगे। सो व्हाट हैव वी गॉट हियर 6192, so it is the square of 54। Now just see the second। अभी आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि 98 को अभी हम कैसे लिख सकते हैं 90 प्लस 8 का होल स्क्वायर। नो, दैट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट एंड टाइम टेकिंग। इसको हम थोड़ा अलग तरीके से करते हैं, कुछ और होल नंबर के अराउंड आप थिंक करिए। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 100 माइनस 2 का होल स्क्वायर। वैसे हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जो नंबर्स 100 के नियरर होते हैं उनको हम 100 के ही पैटर्न में एक्सपांड करें, ओके, बट इट वाज क्वाइट डिस्टेंट फ्रॉम 100, तो इसलिए हमने इसको 50 के अराउंड रखा, क्योंकि 50 का भी स्क्वायर काफ़ी ईजी है। सो 98 विच इज़ क्वाइट नियरर टू 100, तो 100 माइनस 2 का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर आइडेंटिटी इज एप्लीकेबल है। सो 100 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 into 2, then plus 2 square. So here you have got 10,000 minus 400 plus 2 2s are 4. Now you can just add them and then you can just subtract 400 to get your desired value. You know very well, when you will subtract to 0 from 4, you will be getting 4 itself, and then what have you got here? 0 will be there, then 10 minus 4 6, and here 9 9604 is the square of 98. You can check it out by simple multiplication method. Then just see the third example. I hope कि अब आपने गेस कर लिया होगा कि इसको हम कैसे स्प्लिट करेंगे। It is 107 square, so you can just do it by 100 plus 7 whole square. आई होप कि आप इसको सॉल्व कर लेंगे, दैट्स वाई आई एम नॉट गोइंग टू जस्ट सॉल्व इट आउट। नाउ जस्ट सी द नेक्स्ट फोर्थ एग्जाम्पल। हेयर इट इज़ 197 इंटू 203। तो यहाँ पर अभी दो टर्म्स आ गए। अब आप सोच रहे होंगे इसको कैसे करेंगे। इसका ध्यान रखिएगा, जब भी इस तरीके से दिया होगा तो देयर माइट बी द आइडेंटिटी a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो कैन यू जस्ट राइट इट लाइक a प्लस बी एंड a माइनस बी। अगर आप ध्यान दें तो 197 इज क्लोजर टू 200, and when you will be subtracting 3 from 200 then you will be getting 197, and जब आप 200 में 3 ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 203। तो जस्ट सी हियर, ये क्या लिखा जा सकता है 197 इंटू 203। तो आप इसको लिख सकते हैं 200 माइनस 3, एंड इसको लिख सकते हैं 200 प्लस 3। ओके, सो इट इज़ व्हाट हियर a माइनस बी a प्लस बी मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 200 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। सो यू हैव गॉट 2 2s are 4, 40,000 minus 3 3s are 9. So after subtraction you will get the answer. So here we have got 19993. So this is the result of multiplication of both these numbers. देन आपके कुछ सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस इस तरीके से भी दिए जा सकते हैं, और ये क्वेश्चंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एसएससी एग्ज़ाम्स के रिस्पेक्ट में भी, या अदर कोई स्कूलिंग बेस्ड एग्ज़ाम्स के लिए भी। जैसे आपका
ओलंपियाड एंड अदर एग्जाम्स ऑल्सो। सो यहाँ पर देखना है हमें कि किस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं 198 इंटू 198 माइनस 102 into 102 it is written. So how can we just write it down? You can just see 198 means 2 times it is multiplied, it means 198 square it is, and here it is 102 square by 96. Okay, so what we have to do here, a square minus b square के फॉर्म में ये आ गया है। अब इसको हम a plus b a minus b लिख सकते हैं। so 198 plus 102, 198 minus 102 upon 96. You can just see here what is there. The result is 0 and 0 and 2 1 3. Then here what we have got 6, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का ही रिलेशन है, 6 and 9. 1 got subtracted to 1 to give 0 upon 96. So you just see the result is 300. Very easily we got the result of this one. बहुत कम टाइम में हमने विद इन सेकेंड्स इसको सॉल्व कर लिया। अगर हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड से करते तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाता और वैसे में आपके कैलकुलेशन एरर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। देन जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो आपका इस टाइप से मिलते हैं, जहाँ पर x प्लस वाई की वैल्यू गिवन है आपको और यहाँ पर एक्स वाई की भी वैल्यू गिवन है। आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये आपके टोटली आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो बहुत सिंपल हैं और बट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए यहाँ पर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें कौन सी आइडेंटिटी लगानी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू आपको किस चीज़ की गिवन है, x प्लस वाई की गिवन है और आपको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। तो आप चाहे a प्लस बी की आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, वहाँ पर भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है, और चाहे a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, वहाँ पर भी दोनों में ही a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू आती है। इट मीन्स हमें ये जस्टिफाई कर रहा है कि यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी एप्लीकेबल होगी। यहाँ पर एप्लीकेबल होगी a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी। सो लेट अस जस्ट प्रोसीड। सिंस यू नो आप आइडेंटिटी को a प्लस बी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, x प्लस वाई के भी फॉर्म में लिख सकते हैं, m प्लस n के भी फॉर्म में लिख सकते हैं। आपको जिसमें भी कंफर्टेबल लगे आप यूज़ कर सकते हैं उस पैटर्न में। सो अकॉर्डिंग टू दिस, बाय कंपेयरिंग, we have got x plus y whole square is equals to x square plus y square plus 2xy। अब आप क्वेश्चन में देखिए आपको वैल्यू गिवन है किसकी, x प्लस वाई की, विच इज 9, और एक्स वाई की भी वैल्यू गिवन है दैट इज 6। सो लेट अस रिप्लेस दीज वैल्यूज। सो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑन पुटिंग, हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी ये चीज़ें गिवन है, हमने खुद से अज्यूम नहीं किया है। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9 and xy is equals to 6. okay, in the above equation, so क्या मिल जाएगा हमें, 9 square is equals to x square plus y square plus 2 into 6। आप देख सकते हैं यहाँ पर 9 9 are 81, you know very well the square of 9, so x square plus y square is equals plus 8 2s are 6 2s are 12, so you have got 12 here। हमें वैल्यू चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की, so 12 will be shifted to this side। so what have we got here, 81 minus 12 is equals to x square plus y square, so it means x square plus y square is equals to how, what will be there, 9 and 7, 79। so 69 is the answer। सो आई होप कि इस क्वेश्चन को समझने के बाद अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, जहाँ पर x माइनस वाई की वैल्यू गिवन है और एक्स वाई की वैल्यू गिवन है। सो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। सिमिलरली यहाँ पर हमने x प्लस वाई मीन्स a प्लस बी का होल आइडेंटिटी का फॉर्मूला लगाया था, बट यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। सो इट इज़ होमवर्क फॉर यू। आई होप कि ये आप सॉल्व कर पाएंगे एंड आप अपने आंसर्स को हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
सो जस्ट सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल. यहाँ पर हमें x माइनस 1/x इज इक्वल्स टू 12 दिया हुआ है और हमें वैल्यू फाइंड करनी है x² प्लस 1/x² की. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. जैसे मैंने बताया प्रीवियस क्वेश्चन में, यहाँ पर a माइनस b की आइडेंटिटी लगेगी, सिमिलरली यहाँ भी लगेगी. सो लेट अस इम्प्लीफाई द आइडेंटिटी हियर. सो इट विल बी x² प्लस 1/x², then minus 2ab means 2 into x into 1/x. Okay, so you can see here we are just applying the identity x minus 1/x whole square. Okay, बाई मिस्टेक मैंने इसको पहले लिख दिया. आप लेफ्ट हैंड साइड में x माइनस 1/x की वैल्यू लिखेंगे एंड राइट हैंड साइड में इट्स एक्सपांडेशन यू हैव टू जस्ट राइट. सो आफ्टर दिस आई एम जस्ट टेकिंग इट टू दिस साइड. तो यहाँ पर हमें वैल्यू गिवन है, दैट इज 12. So square of 12 will be just writing later. You can just see here this will get cancelled out. तो हमें क्या मिल गया, x² plus 1/x² minus 2 and the square of 12 is 144 is equals to x² plus 1/x² minus 2. So we want the value of x² plus 1/x², so 2 will get to this side to give the value of this one. So what have we got here? 144 plus 2 is equals to x² plus 1/x². So the final value of x² plus 1/x² is 146. This is the answer. Then it is one of the most important question because ये आपके कंपटीशन एसएससी वगैरह के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है. अगर आप अभी से इसको सीख लेंगे और ध्यान में रखेंगे तो आप जब कंपटीशन लेवल पर जाएंगे तो आपके लिए बहुत सिंपल और इजी हो जाएगा. पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि जब भी आप किसी रूट नंबर का स्क्वायर करते हैं, अगर किसी भी नंबर में रूट लगा है इट मीन्स इट्स पावर इज 1/2. मैंने एक्सपोनेंट्स एंड पावर चैप्टर में इसको बहुत अच्छे से बता रखा है. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उस चैप्टर की वीडियोस को देख सकते हैं. बट मैं एक रिवीजन थोड़ा सा आपको दे देती हूँ. किसी भी नंबर में अगर a की पावर a पर रूट लगा हुआ है इट मीन्स द वैल्यू ऑफ a इज हाफ. और स्क्वायर करने का मतलब, अगर हम रूट का स्क्वायर करते हैं इसका मतलब पावर हाफ का स्क्वायर हो जाएगा. और मैंने एक्सपोनेंट चैप्टर में बता रखा है कि जो पावर की पावर होती है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है. सो इट विल गिव यू a टू द पावर हाफ इंटू हाफ. सो दिस 2 and 2 विल गेट कैंसल टू गिव कंप्लीट a. तो मतलब जब भी किसी रूट नंबर का स्क्वायर किया जाता है तो वो कंप्लीट नंबर, होल नंबर मिल जाता है. ठीक है. सो यहाँ पर a प्लस बी मतलब x प्लस 1/x की वैल्यू दी गई √5 और आपको वैल्यू फाइंड करनी है x² प्लस 1/x² की. बहुत सिंपल है. हमने बता रखा है कि यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी. अभी तक आपने गेस कर लिया होगा. एग्जैक्टली यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी यूज होगी. a प्लस बी होल स्क्वायर बिकॉज हेयर द वैल्यू हैज बीन गिवन इन द फॉर्म ऑफ प्लस. सो इट विल रिजल्ट a² प्लस 2ab प्लस b². So after this x plus 1/x whole square is equals to x² plus 2 into x into 1/x plus 1/x whole square. So from here you have got x², x will get cancelled out by this x plus 2 plus 1/x square. और इसकी वैल्यू हमें गिवन है, that is √5. So √5 square. So as I told that any root number will get whole number after getting its square. So here we have got 5 is equals to ये हो गया x² plus 1/x² plus 2. अभी देखिए हमें सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए. So this 2 will get shifted to this side. So we have got here x² plus 1/x² is equals to 5 minus 2. ये मैंने 2 को इधर शिफ्ट किया है बट इनको रीअरेंज कर दिया है. जो लेफ्ट हैंड साइड में था उसको मैंने राइट वाले को लेफ्ट में कर दिया और लेफ्ट वाले को राइट में कर दिया है. ओके. सो हेयर वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ x² प्लस 1/x² 3. ओके. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई. अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4. इट मीन्स अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी. सो लेट अस डू द स्क्वायर ऑफ दिस फर्स्ट इक्वेशन. स्क्वायरिंग इक्वेशन फर्स्ट बोथ साइड्स. ओके. हमने बोथ साइड में इसको स्क्वायर कर दिया है. सो जस्ट सी व्हाट हैव वी गॉट. x² प्लस 1/x² होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर.
so it will give x to the power 4, power will get multiplied, plus 2 into एक्स स्क्वायर. आइडेंटिटी विल बी सेम, ये यही आइडेंटिटी लग रही है, मतलब ये हमारा ए है और ये हमारा बी है. सो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab 1 बाई एक्स स्क्वायर and plus b का square, so it will give 1 by x to the power 4, then 3 3s are 9, so this will get cancelled out. So we have got here x to the power 4 plus 1 by x to the power 4 plus 2 is equals to 9. Now this 2 will go to this side because we need the value of only 1 by x to the power 4 plus 1 by x to the power 4, so 9 minus 2 is equals to 7. So this is the final answer of this question. आज के इस वीडियो का मैं लास्ट क्वेश्चन, लास्ट एग्जाम्पल आपको बताने जा रही हूँ. इस वीडियो में मैंने सारे टाइप के सारे स्पेशल क्वेश्चंस को मैंने कवर अप किया हुआ है. आप किसी भी बुक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वेदर इट इज़ RS अग्रवाल, RD शर्मा, पियर्सन और कोई भी पब्लिकेशन या NCERT, आई होप कि आपकी सारी बुक्स की प्रॉब्लम्स आपसे सॉल्व हो जाएंगी इस कंसेप्ट को पढ़ के. ओके, सो जस्ट सी दिस एग्जाम्पल. यहाँ पर हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू दैट इज 66. हमें वैल्यू फाइंड करनी है एक्स माइनस 1 बाई एक्स की. सो यहाँ पर भी हम आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, बट यहाँ तो ऑलरेडी हमें वैल्यू जो है वो स्क्वायर के फॉर्म में दी गई है, तो कहाँ पर आइडेंटिटी लगाएंगे. यहाँ पर हमें जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है हम उस एक्सप्रेशन में आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे. सो इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ a माइनस बी. सो हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे. सो ए स्क्वायर प्लस 2ab, सो सॉरी माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. सो जस्ट लेट अस डू इट. स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर. जस्ट सी हियर इट विल गेट कैंसल्ड आउट. हमें क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर. सो कैन वी राइट इट लाइक दिस, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2, और ये किसकी वैल्यू है, एक्स माइनस 1 बाई एक्स की. ठीक है, जस्ट सी इन द क्वेश्चन हमें इसकी वैल्यू दी गई है दैट इज द 66. सो लेट इज रिप्लेस इट. सो 66 माइनस 2 यहाँ पर आप लिख दोगे, सिंस x square plus 1 by x square is equals to 66, which is given in the question. So here 1 minus x minus 1 by x whole square. After this we have got 64. Okay, and here is square is there. अगर ये square नहीं होता तो हमें रिक्वायर्ड वैल्यू मिल जाती, हमें x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू चाहिए, बट स्क्वायर एक्स्ट्रा है. सो बाई टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑन द बोथ साइड वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ x माइनस 1 बाई एक्स. सो यहाँ पर हम लोग करेंगे taking square root on both side, taking square root on both sides. So just see, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका स्क्वायर हट जाएगा. क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट लेने का मतलब पावर 1/2 करना, और 2 इंटू 1/2 मिलकर वैल्यू 1 देगा. सो दैट्स वाई is equals to square root of 64, and you know very well the square root of 64 is 8. So the value of x minus 1 by x is 8. Okay, so हमने इस वीडियो में आपको सारे टाइप के क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर दिए हैं. इसको बहुत अच्छे से आप देखिएगा. आपकी जो अदर प्रॉब्लम्स हो उसको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी. अंटिल एंड अप टू जस्ट प्रैक्टिस मैथ्स and just chase your problems to get it solved. Thank you so much.